Hello everyone, welcome to Achievers. If you have yet not subscribed the channel, subscribe it to watch such videos which I will be constantly making for your easy understanding of the science concepts. In today's video, I will explain you the same chapter but different topics. We will be taking the topics of concentration of solution and separating the different components of a mixture from the chapter 2 is matter around us pure of class 9th. Let's begin with the positive thought. The thought says that education is an ornament in prosperity and refuge in adversity. That means it is your education which is going to stay with you in all the difficult and the relaxed time as well. Okay, let's begin with the chapter. So when we talk about the different concentration of solutions, that means कि जब हम solution की concentration की जब बात करते हैं, हम बोलते हैं this is a dilute solution, this is a concentrated solution and all that. So what are those terms? How do we express the concentration of a solution? So whenever we are talking about concentration, first let's know what is concentration. So concentration का मतलब होता है that how much amount of solute is there in the solution, कि उस solution के अंदर कितना amount of solute है. Either it can be by mass, that means we can say this much mass is present in this much of solvent, or we can also say this much volume is there in this much of solvent. Fine. So concentration is basically the amount of solute, how much amount of solute in this much amount of solvent. Fine. Solvent क्या है और solute क्या है? Hope you are aware. Solute means the substance which is dissolved into solvent, and solvent is what? Which dissolves the solute in it. Fine. To form solution. So the solutions can be, for example, I have taken for you here that if I take 10 gram of copper, okay, if I take 10 gram of copper and dissolve it into this one beaker full of water, then this will form a 1A solution, okay. And if I talk about this, when I will be dissolving 30 gram of copper sulfate, I can say that this has formed the type of B solution. Fine. Now what's the difference in A and B? You can see that simply by looking at their color, because copper sulfate is blue in color. So you can see by difference in colors, you can say that in this beaker more amount of copper sulfate was added. So the amount of this solute, that is copper sulfate, is more in this beaker B. So here as compared with A, this B is more concentrated. That means concentration basically a comparative term है, like smart, smarter, smartest. So we compare the qualities. Similarly, concentration में comparative term है. We can say that this A is less concentrated as compared with B. If I will add 5 gram of copper sulfate in some other beaker, then this A will also become more concentrated as compared with that. So this is a basically comparative term. Now what are the different types of solution on the basis of their concentration? We can say dilute, as I just used the term, like in beaker A. Beaker A is more dilute, that means it is having less amount of solute in it. That means the solution is having less amount of solute. That type of solution will be called diluted solution. ठीक है. सेकेंड आता है, जब हम बात करते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड है, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन? इसका मतलब है दैट मीन्स दैट इन दैट सोल्यूशन देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट. Okay, so it is having comparatively more amount of solute in that. Fine. Now next comes it's a saturated solution which we would have formed earlier also. Like saturated solution का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा solution है जिसमें और ज़्यादा solute नहीं add हो सकता. That means we cannot add more amount of solute into it further. फाइन. जैसे हम कई बार चीनी की चाशनी बनाते हैं तो एक टाइम आएगा, आपने अगर 100 ml वाटर लिया है या 50 ml वाटर लिया है तो उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन ऐड ऑन हीटिंग, थोड़ा बहुत और चीनी ऐड हो जाएगा, बट एक टाइम आएगा जब उसके बाद चीनी और नहीं घुलेगा. सो सिमिलरली इट इज़ देयर फॉर डिफरेंट सोल्यूशंस. चाहे आप नमक का सोल्यूशन बनाएं, सॉल्ट का बनाएं, या किसी कॉपर सल्फेट का बनाएं, या किसी भी सब्सटेंस का बनाएं, एक टाइम आएगा जब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट
के अंदर और ज़्यादा वो क्वांटिटी सॉल्यूट की नहीं ऐड हो सकेगी. दैट सोल्यूशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. दैट मीन्स अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड फर्दर. फाइन. At a particular temperature, now remember here, as we increase temperature, the solubility increases. We can add more amount of solute when we heat something. Why? Because on heating, you're aware, the particles will absorb the energy and will start vibrating. So they will go here and there. The space between the particles will increase. और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा सॉल्वेंट के पार्टिकल का, सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें और बीच में फिट हो जाएंगे. सो क्या होगा यहाँ पर, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा और डिजॉल्व नहीं हो सकता है. दैट विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Now when there is a saturated solution, that means there is an unsaturated solution also. So what do you mean by this unsaturated solution? Means the amount of solute which is present in a particular solution is less than its saturation level. अगर वो saturation level से नीचे अमाउंट है सॉल्यूट का उस सोल्यूशन के अंदर, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड. इसका मतलब है कि हम इसमें और ऐड कर सकते हैं. सैचुरेटेड मतलब इट इज समवॉट लाइक सेटिस्फाइड. आई एम सेटिस्फाइड विद माई सिचुएशन, आई डोंट वांट एनी फर्दर. तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं लेगा, नहीं चाहिए. और अनसैचुरेटेड क्या होगा, सी इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट मोर, सो इट विल कीप ऑन टेकिंग मोर सॉल्यूट इनटू इट. सो दैट विल बी कॉल्ड unsaturated solution. So these are the types of solutions on the basis that how much solute is present in them. Okay, moving further, okay, we can also express the concentration in different ways. This was the different types of solution on the basis of the amount of solute in it. Now how the concentration can be expressed, so we can express it in many terms, but your book has discussed three basic terms, methods. What are they? We can express by mass, by mass percentage, कि हम मास परसेंटेज कितना है उसके पेपर कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. सेकंड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. एंड थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. फाइन. इसको हम इजी वे में समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल लेके आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ फर्स्ट आता है मास बाय मास परसेंटेज. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज. तो हमने क्या किया, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट अगर हम कहीं से लेते हैं और उसमें उसको हम 320 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, 40 दैट इज सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमारे पास आ जाता है ये इसका मास परसेंटेज सॉल्यूट का. दैट इज सॉल्यूट इज 11.1%. That is its concentration by mass. Okay. Second आता है volume by volume percentage, कि वॉल्यूम कितना है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि हम यहाँ पर सॉल्यूट को भी वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम ले रहे हैं, एंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या है. तो जैसे मान लीजिए मैंने वॉल्यूम लिया है सॉल्यूट का 20 ml और सोल्यूशन का लिया है 200 ml. तो 20 बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स ये जो सॉल्यूट का परसेंटेज है वो 10% है. फाइन. थर्ड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. अब हमारे पास यहाँ पर है 60 ग्राम सॉल्यूट मास. ओके, एंड हमारे पास है 500 ml सॉल्वेंट. इसमें भी सेम वही चीज़ करते हैं हम, 60 डिवाइडेड बाय 500 ml इंटू 100, दैट इज 12%. दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पर हमारा सॉल्यूट जो हमने लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर शुगर लिया है, उसका परसेंट जो मास वॉल्यूम परसेंटेज है 500 ml के अंदर वो कितना है, 12%. तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन कितना है. ओके, there will be some numericals based on it. Your book has given, NCERT textbook has given one example and few in the exercise. Now the next thing I am starting is this one. There are different techniques which are used to separate the components of mixture, because आपका जो chapter है that is asking is matter around us pure. क्या हमारे आसपास की सारी चीज़ें pure है composition में, और अगर नहीं है that means it is in mixture form,
और अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इट can be solid solid, it can be solid liquid, it can be liquid liquid, it can be liquid gas, it can be gas gas. So there is so many combinations of mixtures also possible. Fine. And the different components of mixture can also have different properties. अब उसकी properties जो है components की properties, उसके base पर भी different methods need to be adopted कि उनके components को कैसे separate out हम कर सकते हैं. Fine. For example, this one first जो हमने यहाँ पर example which your book has also given is separating the colored component from ink by evaporation. अभी हमने क्या लिया है, यहाँ पर ink लिया है. As you can see, we are not heating the ink directly because ink को directly heat करने से some वो component को separate नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए and it might burn. Fine. So और its component might decompose. Okay, ध्यान रखिएगा जब भी हम चीज़ों को separate करते तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे that imagine you are heating and the component जो हम separate करना चाहते थे वो तो heat करने पे decompose हो गया, break down हो गया, कुछ और product में change हो गया. So that keeping that all properties in mind हमें separation method को adopt करना पड़ता है. So इसमें हमने क्या किया है, we have taken the ink in the petri dish, you can see here watch glass में हमने लेकर एक beaker जिसमें हमने water को heat किया है. So we are heating the water and we have kept the petri dish. तो इससे क्या हो रहा है, heat directly नहीं पहुंच रहा है, heat is reaching first water is getting heated up, water vapors जाकर petri dish में जो amount है ink का उसको heat कर रहे हैं. Now इससे क्या हो रहा है कि heat directly नहीं पहुंच रहा है और this ink is not getting changed into something else. तो इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस ink को heat पहुंचेगी वैसे इसमें जो water present है it will form vapors. Okay, and these vapors will evaporate. These vapors will evaporate, leaving behind this component of ink. Okay, and this colored ink component only we wanted to separate. Okay, so this is what we have separated. So this ink, you are aware, is a dye because it is giving color. It is giving color to the means we write using that ink. It gives color so that we can use it. So it is basically a dye. Okay, so this ink was a dye in water, dissolved in water solution. Fine. And we have now what it's saying that evaporation can be used to separate volatile substance from non-volatile substance. अब volatile substance क्या है, जो जल्दी evaporate हो जाता है, vapor form में change हो जाता है. Volatile means volatile vapor. So connect the word VV. Okay, and see that volatile substances कौन से substances है जो vapor form में easily change हो जाते हैं, and non-volatile कौन से substances है that does not change easily into vapors, जो easily change नहीं होंगे, जो time लगाएंगे या which will need more amount of heat energy to be absorbed to change into vapor form. So that will be this evaporation method can be adopted to separate these components, the volatile component and the non-volatile component from their solution. Fine. Moving on further, when we talk about separating the cream from milk, जब हम cream को separate करने की बात करते हैं milk से, तो हम बात करते हैं either we have that churning. ओके, इन ओल्डन डेज हम वो मटका और वो चर्न करके हम कर्ड से, दही से मक्खन को हीट करके घी प्रिपेयर करते थे. नाउ सिमिलरली अगर मिल्क से ही विदाउट कन्वर्टिंग इनटू कर्ड अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें क्रीम को, then there are some methods which are adopted, but जो उसमें process होता है, machines can be different, but जो process होता है that is called centrifugation. What that is called? Centrifugation. This centrifugation. Okay, centrifugation में हम क्या करते हैं, as you can see this machine also, this is not exactly used to separate cream. ये cream को separate करने वाली machine नहीं है, ये है blood and urine samples के test करने वाली. बट इस नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम जो सैंपल होता है उसको बहुत फास्ट स्पीड पर रोटेट करवाते हैं, और जब हम उसको बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं तो कंपोनेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी
वो कितने डेंस हैं, उस बेसिस पर वो कंपोनेंट अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो हैवी है, जो डेंस है, वो बॉटम पर चला जाता है, और जो लेस डेंस है, लाइटर है, वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आपको पता होगा क्रीम, दैट इज फैट बेसिकली। तो फैट आपको पता है हमेशा फ्लोट करता है, बीइंग लाइटर इन वेट। ऑयल जैसे फ्लोट करता है पानी पर, सेम वे जो क्रीम होता है दैट इज ऑल्सो लाइटर, तो वो ऊपर आ जाएगा, और जो डेंस पार्ट है दैट इज मिल्क पार्ट, दैट विल रिमेन in the lower layers. So सेम यहाँ पर सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, और जो प्रिंसिपल जो सेंट्रिफिकेशन यूज़ करता है वो वही है कि डेंसर पार्टिकल्स विल बी फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स विल stay at top when we spin rapidly, जब machines rapidly. Now this machine which you can see here, this centrifugation machine, ये कहाँ यूज़ होती है? centrifugation सिर्फ क्रीम को सेपरेट करने में नहीं आता है. It is also used in laboratories for checking the blood samples, urine test. Okay, it is also used in dairies, in a home to separate butter from curd and from cream. It is also used in the washing machines. We have the washing machines. Washing machine में जो spinner होता है जिससे हम एक्स्ट्रा पानी को स्क्वीज कर लेता है, that also uses the centrifugation technique only. पानी जो हैवी होता है वो नीचे चलता जाता है, और कपड़े जिसमें से पानी निकलता जाता है वो लाइटर होकर ऊपर की तरफ आते जाते हैं. सो दिस सेंट्रिफिकेशन मशीन जो आप यहाँ देख रहे हो, दिस रोटेट्स एट ए वेरी हाई स्पीड. इसके ऊपर जो कैप है, दिस कैप हम इसको डाउन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और ये हाई स्पीड पर रोटेट करता है. और जब ये रोटेट करते हैं तो हमारे जो ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग. ओके, इमेजिन करिए कि अगर हमें सेपरेट करना है टू इमिसिबल लिक्विड्स को, जैसे कि हम कर रहे थे. दिस इज सेपरेटिंग फनल एंड दिस इज हैविंग टू सॉल्यूशंस इन इट. हमारे पास कैरोसिन ऑयल है और हमारे पास वाटर है. इसका इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन है. जैसे इमिसिबल मीन्स वो लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते हैं. ओके, जैसे आप पानी और ऑयल को मिक्स करें, कुकिंग ऑयल को, वो भी आपस में मिक्स नहीं होते, डिफरेंट लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं. सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस लेयर, यहाँ से लेकर हमारा जो यहाँ तक का लेयर है दिस इज कैरोसिन, और यहाँ से लेकर जो हमारा नीचे तक का लेयरिंग है ये है वाटर. सो नाउ व्हाट विल डू, दिस इज अ स्टॉप कॉक. इसको हम स्लाइटली रोटेट करते हैं तो यहाँ से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आकर ये सेपरेट होता जाता है. और जैसे जैसे ये कॉलम नीचे की तरफ आता जाएगा, और ये जैसे इमेजिन कि हमारा यहाँ तक ये लेवल आ चुका है, और जैसे ही वाटर का अमाउंट मैक्सिमम निकल चुका है हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं. एंड देन सेपरेट होता है कैरोसिन ऑयल. कैरोसिन ऑयल जैसे नीचे आएगा वैसे ही हम स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं, और एक अलग बीकर में या अलग वेसल के अंदर कैरोसिन को कलेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से सेपरेट होते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, मूविंग फर्दर, if I have to now separate the mixture of salt and camphor. Salt, the common salt, imagine the which we use in kitchen, that is sodium chloride. Okay, अगर मुझे उसके मिक्सचर को और अगर मुझे सेपरेट करना है कैम्फर को. ओके, कैम्फर मीन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम घर में वो बत्ती जलाते हैं, विच भी जो हम आरती में यूज़ करते हैं, कैम्फर. ओके, उसको यूज़ करके अगर उसके मिक्सचर आप बना लें, यू कैन ट्राई दिस एट होम ऑल्सो. अगर आप सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होता है, एज यू आर अवेयर, कैम्फर इवेपोरेट्स वेरी क्विकली and the salt will be left behind. As you can see here, we have taken the mixture of it in a china dish. हमने क्या किया, इसको slowly heat किया है. Okay, we have given the heat to this, and on getting heat, जो इसमें camphor है या naphthalene है वो क्या होगा, वो जल्दी evaporate हो जाता है, and इसके वेपर्स को हम चाहे तो यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू विल पुट अ कॉटन ओवर हियर ऑन द कैप ऑफ द फनल, तो क्या होगा, उसके वेपर्स यहीं पर वापस कंडेंस हो जाते हैं. यू कैन सी दिस सॉलिडिफाइड कैम्फर. सॉलिडिफाइड कैम्फर का मतलब है कि पहले इसके वेपर्स फॉर्म हो गए थे, एंड वेपर्स वापस कंडेंस होके वापस उसने सॉलिड कैम्फर बना दिया है. सो इस मैथड से हम क्या सेपरेट कर सकते हैं, उन सॉलिड्स को जिसका
जो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, सॉल्ट विल नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, एंड देयर इज अनदर सब्सटेंस लाइक कैम्फर विच कैन इजीली इवेपोरेट. सो ऐसे मिक्सचर्स को हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. सेकेंड, दिस इज अ सब्लिमेबल वोलेटाइल सब्सटेंस. इसका मतलब है कि ये जल्दी सब्लाइम उड़ जाता है, मीन्स चेंज इनटू वेपर्स. इन सिंपल टर्म्स वी से दैट, जैसे हम बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स उड़ जाती हैं, मीन्स दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग इनटू वेपर फॉर्म. दैट मीन्स हम बोलते हैं कि दैट व्हाट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज लाइक व्हेन सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म without changing into liquid, because that change is not actually visible. Okay, so that is like something like substances like naphthalene, ammonium chloride, they can change into वेपर फॉर्म वेरी क्विकली. ओके, जैसा कि यहाँ पर ऑब्जर्व किया. तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम इस मेथड से हीट कर कलेक्ट करके भी हम सेपरेट कर सकते हैं. ओके, now the next comes is separating the components present in black ink. Imagine now the black ink which we use, क्या वो एक ही component से बना हुआ है? नहीं. Black ink is made from different components which are mixed together to make that colored dye. Okay, so हम इसको किस method से उस different component को separate कर सकते हैं? हम use करते हैं chromatography. हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में क्या हम यूज़ करते हैं? दिस इज़ ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर. क्रोमेटोग्राफी पेपर, इस पे हमने क्या किया है, एक लेवल मार्क लगा के यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं. हम यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लैक इंक का एक डॉट लगा देते हैं. एंड नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हम इसको डिप करते हैं पानी में. अब क्या होगा, जैसे जैसे पानी यहाँ से मूव होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे यहाँ पर जो इंक है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, विच आर सम आर हैवियर, सम आर लाइटर, कोई ज़्यादा हैवी बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई ज़्यादा छोटा मॉलिक्यूल है, मतलब कंपेरेटिवली दे वर डिफरेंट साइज. सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द इंक, वो कंपोनेंट अलग अलग स्पीड से वाटर के साथ मूव करते हैं. एंड जब वो अलग अलग स्पीड से करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं. इफ़ यू विल सी देम मूविंग, आप यहाँ देखेंगे डिफरेंट कलर्स की लेयर्स फॉर्म हो जाती है. एंड वो डिफरेंट कलर कंपोनेंट जिस केमिकल की वजह से है, वो हम बाद में इस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी पेपर. बट इसमें यही है कि जिन सब्सटेंसेस को हमें सेपरेट करना है, दे शुड बी एबल टू डिज़ोल्व इन द सेम सॉल्वेंट. अगर कुछ इसमें कंपोनेंट हुए जो कि पानी में डिज़ोल्व ही नहीं होते, सो वी कैन नॉट सेपरेट यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी पेपर. तो इसमें जो सारे कंपोनेंट हैं वो वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए. फाइन. द नेक्स्ट मैथड विच वी हैव टू डिस्कस इज कि हमने डिस्कस किया कि टू इमिसिबल है, कि एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, उनको ईजीली सेपरेट हम कर सकते हैं यूजिंग द सेपरेटिंग फनल. हमने उनको अलग अलग सेपरेटिंग फनल में रखा है हमने उनको, और जैसे जैसे अलग अलग कॉलम्स जो क्रिएट हुए हैं उसको अलग अलग फनल में या वेसल में कलेक्ट करके रख लिया है. फाइन. बट अगर हम बात कर रहे हैं मिसिबल लिक्विड्स की, ऐसे लिक्विड्स की जो कि मिसिबल हैं, जैसे इमेजिन करिए डिफरेंट कंपोनेंट, अगर आप पेट्रोल में डीजल मिक्स कर दें या डीजल में कैरोसिन मिक्स कर दें, तो ये हम एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, हमें मतलब वी विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट. तो ऐसे लिक्विड्स को जो कि एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाए? that can be done by these two methods which we called as distillation and fractional distillation. Okay, as you can see here, this is a distillation setup. इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर. अब क्योंकि एसीटोन वाटर में सॉल्युबल है, आप कैसे इसको सेपरेट आउट करेंगे? सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट, वी हैव पुट अ थर्मामीटर. अब हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितने पर एसीटोन या दूसरा कोई भी कंपोनेंट जो हम सेपरेट करें उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है. जैसे ही टेम्परेचर में वो लेवल आएगा, हमें एसीटोन के वेपर्स चेंज हो जाएंगे एंड वेपर्स फॉर्म होकर एसीटोन के वेपर्स को हम यहाँ से वेपर्स फॉर्म होते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ से इधर मूव करेंगे, जैसे जैसे वेपर्स यहाँ आते जाएंगे. और यहाँ पर हमने क्या किया है, वी हैव पास द वाटर, हम यहाँ से
यहाँ से हम वाटर पास करें ताकि वो वेपर्स कूल डाउन हो जाएं और वापस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, एंड दैट लिक्विड विच विल कंडेंस हियर, वो वेपर्स जो कि हमारे वेपर्स थे वो यहाँ पर आते हुए कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर वी विल कलेक्ट इट इनटू द बीकर हियर. ओके, एंड सेम विद द सेकेंड कंपोनेंट. जैसे आपको पता है 100 डिग्री के आसपास पहुँचेगा टेम्परेचर, वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर्स. उन्हीं वाटर वेपर्स को हम वापस यहाँ कलेक्ट करके जैसे ही हमारा एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस हुआ, थोड़ा सा रेंज हमने अलाउ किया, उसके बाद जो वेपर्स बनेंगे वो एसीटोन के नहीं होंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम उसके बाद फिर बीकर अपना चेंज कर देंगे. उसके नीचे हम वी विल पुट अनदर बीकर, और उसमें हम चाहें तो हम वाटर के वेपर्स को वापस यहाँ से कूल डाउन करके कलेक्ट करते हुए वाटर का कलेक्शन कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वे डिफरेंट मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड. बट यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर सम लिमिटेशंस. फर्स्ट लिमिटेशन ये होता है कि जो मिक्सचर है वो हीटिंग पर डीकम्पोज नहीं होना चाहिए. पता लगा आई एम हीटिंग सम सब्सटेंसेस ए एंड बी मिक्सचर, और सब्सटेंस ए तो डीकम्पोज हो गया एंड इट हैज़ फॉर्म द COD. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू सेपरेट द component. सो हियर द मिक्सचर शुड नॉट component of mixture should not decompose on heating. Second point is that there should be a sufficient difference in the boiling point. अगर दो substances A और B के boiling point में difference ही नहीं है, correct, 1 और 2 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी उनको completely separate करने में, because vapors will again get mixed up. तो हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, sufficient difference होना चाहिए दो component के boiling point पर, ताकि हम उनको easily separate out कर सके. Fine. And fractional distillation, this is also used in separating the different components of petrol, the crude oil. जो crude oils हम को डिग करके या wells डिग करके निकालते हैं, उसके कंपोनेंट क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन कंपोनेंट्स को भी हम सेपरेट करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से ही. इसमें भी सेम प्रोसेस होता है. क्रूड ऑयल को वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, बिकॉज इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट जैसे जैसे वो टेम्परेचर आता है वैसे वैसे ही इन कंपोनेंट्स के वेपर फॉर्म होते हैं और उनको हम सेपरेट आउट करते हैं. सो द टेक्निक विच इज़ यूज्ड बेसिकली टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन, हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ करते हैं. ओके, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे. I think it has become a longer one, but I think it will be helpful for you. If you have any other question left, or if anything you have not understood, please write in the comment box. I will be happy to answer them back. Okay, and if you have not subscribed the channel, subscribe it so that you can watch the videos. And there's one special request: whenever you watch the videos, watch them in complete length so that you can understand the complete concept. Thank you for watching. Take care.